کہ آج وہ یہ کام نہیں کر سکا اور وہ ہار کر صرف ایک ہستی ہے جس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری زندگی میں آ جاؤ، اور وہ شخصیت کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو ہم تمام مشکلات سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایک نظم ہے چھوٹی سی اور وہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے الفاظ ایسے ہیں، کچھ الفاظ اس کے مشکل ہوں گے جو شاید کچھ لوگ سمجھ نہ سکیں، لیکن جب ہم خداوند کی ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بولتے ہیں تو ہر لفظ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور آپ پلیز لفظوں پر توجہ دیجیے گا، کیونکہ خداوند جو ہے جب ہم اسے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں یا اسے اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری شخصیت کیسی ہو جاتی ہے۔ چند اشعار ہے، نظم ہے، وہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تیرا دیدار یسوع مجھ کو نصیب ہو جائے، تیرا دیدار یسوع مجھ کو نصیب ہو جائے، تو مجھ میں آ کے بس جائے میرا حبیب ہو جائے، تو مجھ میں آ کے بس جائے میرا حبیب ہو جائے، میں بھی تیری طرح محبت سب سے اب کروں، میں بھی تیری طرح محبت سب سے اب کروں، چاہتا ہوں زندگی میں کچھ تو عجیب ہو جائے، تیری صورت کے سہارے زندگی بتا گیا، تیری صورت کے سہارے زندگی بتا گیا، جو بھی آیا اس جہاں میں تیرے پہلو آ گیا، جو بھی آیا اس جہاں میں تیرے پہلو آ گیا، بے ڈھنگ سی میری زندگی میں تیری ترتیب ہو جائے، بے ڈھنگ سی میری زندگی میں تیری ترتیب ہو جائے، چاہتا ہوں زندگی میں کچھ تو عجیب ہو جائے، خالی خالی میری ہستی اور گناہوں کی کے بستی، خالی خالی میری ہستی اور گناہوں کی کے بستی، موت تو مہنگی پڑے گی زندگی ملتی ہے سستی، موت تو مہنگی پڑے گی زندگی ملتی ہے سستی، اے کاش کہ میری ہستی تیرے قریب ہو جائے، اے کاش کہ میری ہستی تیرے قریب ہو جائے، چاہتا ہوں زندگی میں کچھ تو عجیب ہو جائے، اپنی اپنی ہی لگن میں زندگی تو چل رہی ہے، اپنی اپنی ہی لگن میں زندگی تو چل رہی ہے، کوئی کہتا میں بڑا اور بات میری بن گئی ہے، اے کاش سب کی پناہ اب سلیب ہو جائے، اے کاش سب کی پناہ اب سلیب ہو جائے، چاہتا ہوں زندگی میں کچھ تو عجیب ہو جائے، میرا بھروسہ میری یاری زندگی ملتی ہے بھاری، میرا بھروسہ میری یاری زندگی ملتی ہے بھاری، درد پڑھنا میں بھی سیکھوں مجھ میں بھی ہو خاک ساری، درد پڑھنا میں بھی سیکھوں مجھ میں بھی ہو خاک ساری، مجھ گناہگار کا یسوع، مجھ گناہگار کا یسوع حبیب ہو جائے، چاہتا ہوں زندگی میں کچھ تو عجیب ہو جائے۔ یہ نظم، اس کے الفاظ، خداوند کو جب ہم اپنی زندگی دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں بیش بہا خوشیاں دیتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود رہتا ہے۔ آئیے ہم پھر اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ
खुदावंद के अजीम और बबरकत और जलाल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ये है नामे में से लूका रसूल की इंजील का दूसरा बाब, जिसकी 36 आयत से लेकर 38 आयत तक तिलावत करें। और अशर के कबीले में से अन्ना नामी फरीमान की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारेपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे और 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआ के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम में छुटकारे के मुंतज़र थे उसकी बाबत बातें करने लगे। पाकला पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और आज के कलाम के लिए दुआ करें। से दरख्वास्त के जवाब देना है। कदूस मेहरबान खुदा खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, प्यारे रसूल, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे गुजरे लम्हात के लिए, गुजरे हुई जिंदगी के लिए खुदा के खुदा, क्योंकि तू बुलंद वाला खुदावंद है, तू फजल और रहम वाला खुदावंद है प्यारे रसूल। आज की जिंदगी में कुरान के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं कि जो बात हमारी जिंदगी में होने की है प्यारे रसूल, क्योंकि तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है प्यारे रसूल। जब तक हम लोग ज़मीन पे जीते हैं, तेरा कलाम हमारी जिंदगियों से कभी पिछड़ने ना पाए, बल्कि इसी रोशनी में हम खुदावंद पढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को शुक्र अदा करने वाले बने, क्योंकि तू कादिर मुतलक खुदावंद है। तो हमारी जिंदगियों हमारे दिलों पर निगाह करता है खुदावंद। जब तूने कहा तो अपना मुँह खोल तो मैं तेरा मुँह भरता हूँ प्यारे रसूल। है कादिर मुतलक खुदा, जब तक तू हमारी जिंदगियों पर खुदावंद अपने रहम अपने फजल को कहता है प्यारे रसूल, इसी तरह तू हमें वफादारी करनी सिखाता है और अपने कलाम में भरा प्यारे रसूल कि हम तेरी पैरवाई में चलने पड़ने वाले बने। इसी तरह तेरी बंदी के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, होते खुदा तो अपनी बंदी के सच्चे बालों से लेकर पाँव से तलवे तक अपनी बंदी को छू और उनका दुबला देकर खुदावंद इस्तेमाल और खर्च करके तेरी बंदी कलाम करे तो तेरी बंदी ना करे बल्कि तेरा पाक होकर उसमें काम करे। अपनी बंदी को खुदावंद भरे हुए बादल की तरह रखा और हमारी जिंदगियों को, हमारी अक्लों, हमारी सोचों को खुदावंद देखा अभी से मुतवज्जा कर कि हम कई पाक हजूरी में बैठे हुए तेरे कलाम को सुनने वाले और अपनी जिंदगियों में रखने वाले बने प्यारे रसूल। आप देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में एक मेहमान हमारे चर्च के अंदर इन्वाइट किया है हम संडे को, और इनका एक मुख्तसर सा तारुफ है जो आपके सामने करवाना चाहता हूँ। मिसेस रिफत नज़ीर एक समाजी कारकुन के तौर पर काम करती हैं और बहुत सारे इस तरह के इस्लाही काम, बहुत सारे इस तरह के जो हमारी इस्लाह के लिए या हमारी एक बेहतरी के लिए होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर रहते हुए, ये सारे उस टाइप के कामों को लेकर बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं। और इन्होंने बहुत सारे प्री मेडिकल कैंप का इनकार भी किया जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से लोगों को अवेयरनेस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो कि एक ये होता है कि कैंप के अंदर अवेयरनेस दी जाती है, उस तरह के बहुत सारे इन्होंने कैंप के अंदर अवेयरनेस सेशंस बहुत सारे कंडक्ट किए। इसके अलावा 2017 से बल्कि उससे पहले से समाजी कारकुन कामों में सरगर्म थी और इस पर PMRC पाकिस्तान मिनॉरिटी राइट्स कमीशन एक ऐसा ये समझ लें कि हम ये कहते हैं कि कमीशन है जो कि हमारे क्रिश्चियंस के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर
जो हमारे खिलाफ या समझ लीजिए हमारे लिए एक ये होता है कि हमें हकूक़ नहीं मिल रहे हैं या हमें हम पर जबरत जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हमें घेरा जाता है या हमें दूसरी तरफ मूव होने के लिए मोटिवेट किया जाता है और हम पर जुल्म सितम होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो रिसेंटली आपको पता चला होगा कि एक लड़की का जो हुआ था उसके अंदर हमारी इस लड़की ने जो है वो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन में बहुत बढ़ चढ़ा के काम किया था। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को उसका रिजल्ट पता चल गया होगा कि वो किस हवाले से हम लोग उसमें हार मान गए। उसके अंदर ये था कि वो रजामंदी थी और रजामंदी के अंदर रहते हुए मतलब लवलिंग एंड जब उनकी अपनी रजामंदी थी तो उसमें फिर हमारी जितनी भी कमीशन होती हैं, हमारे जितने भी राइट्स कमिश्नर्स या हमारे हकूक़ के लिए लड़ने वाले जो लोग होते हैं वो फिर उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक किसान की खुद की मर्जी इस तरह की हो जाए तो वो फिर किसी नहीं सुनता। पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स कमीशन जो है ये एक ऐसा इदारा है जो बहुत सारे हमारे काम, बहुत सारे हमारे हकूक़ के लिए काम करता है। इसके अलावा ये सिफर जो है वो तर्जमान सिंह और कराची की मीडिया के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। लाइफ टाइम वेलफेयर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अहदे पर कई में काम किया वो ये कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे क्रिश्चियन कब्रस्तानों के अंदर जो है वो इन्होंने बहुत सारे इस तरह के तामीराती काम जो है वो ये जो कर भी रहे हैं, जिसमें बहुत सारी टूटी की कब्रें होती हैं उनका काम करवाना और इसके अलावा उनकी मरम्मत वगैरह, सफाई सुथराई, चित्रकारी का काम वगैरह, ये सारे इस तरह के कामों में मुआविज रहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक एडवांटेज होता है कि हमारे इस तरह के लोग जो खिदमत करते हैं हमारी, और वो इस तरह के कामों को अंदर भी रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कैमरा मैन आए हुए जो BTN TV के हैं, इसने ये सिफर जो है एज ए स्क्रिप्ट राइटर और होस्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। और इसके अलावा लिव इन हॉप में रीजनल डायरेक्टर के अहदे पर भी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारी इस तरह की जो हमारे लोग होते हैं, हमारे जो खिदमत गुजार लोग होते हैं, जो बिना बेरोज़ खिदमत करते हैं हमारे हम लोगों के लिए, तो आप पूरी तरीके से इसके लिए बढ़ दुआओं में अपनी गाँव में को खास याद रखिएगा और ताकि ये इसी तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए जंग लड़ती हैं और इनको दामन का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, ये किसी से कुछ लालच नहीं रखते हुए अपनी खिदमत करते हैं। ये विदाउट एनी कॉस्ट बेरोज़ खिदमत, अगर आपका कोई भी इस तरह का काम होगा जबकि आप लोगों के साथ जिस तरह की मुश्किल आपको दरपेश हो रही है, तो आप बिना झिझक आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम इनसे आपके साथ रब्ता करवा दें। आपका जो भी काम होगा वो आपसे कुछ चार्ज किए बगैर आपकी खिदमत को ये लोग करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने गाँव में इनको याद रखिएगा ताकि अपना उसी तरीके से अपने काम और नाम खुदा की खातिर इस्तेमाल करें। खुदा के रसीम फुल बाबरकर जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। इससे पहले कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ, मैं चाहूँगी कि अपने सरों को खुदा के हुज़ूर में झुकाएं और एक छोटी सी दुआ से अपने कलाम की बातें शेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तमजीद खुदा मेरे खुदा, इस सुहानी सुबह के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए, और खुदा तेरे खुदा अपनी बारगाह में मेरे आने के लिए तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करती हूँ। हालेलुया, तू भला खुदा है, तेरी रहमत तेरी शफ़क़त करती है। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ और खुदा तेरा खुदा अपने आप को तेरे लहू में छुपा देती हूँ, उस लहू को अपने ऊपर और एक जान में जो यहाँ पे मौजूद है, उस लहू को खुदा उस बहती धारा में छुपा देती हूँ जो कोई कलम से बहता है। तू हम सब कुछ मसा कर खुदा तेरे खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुज़ूर में पेश करती हूँ। मेरी जुबान का ज़िम्मा ले, मेरे होठों का ज़िम्मा ले और खुदा मुझमें से होकर खुदा कलाम कर।
जैसा कि आपने एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ से सुना, तो मैं मिसेस रिफत नज़ीर, तर्जुमान पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स कमीशन से हूँ। पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स कमीशन, आप सोच रहे होंगे कि क्या है। ये बे आवाज़ों की आवाज़ है। हम अक़लियतों के साथ पेश आने वाले हर जुल्म, हर ज़्यादती के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। हम इनकी आवाज़, इनके ऊपर होने वाले जुल्म को हाई लेवल तक पहुँचाते हैं। पूरे पाकिस्तान में और बैरूने मुल्क में हर जगह PMRC काम कर रही है और खुदा का शुक्र हो कि हम लीगल एड फराहम करते हैं उन लोगों के लिए जिन पे मुकदमात हैं या जिनके ऊपर किसी किस्म का जुल्म हो रहा है। हम फोर्स कन्वर्जन के हवाले से बहुत आवाज़ उठाते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि PMRC हर उस जगह खड़ी होती है जहाँ हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को इसकी ज़रूरत होती है। मैं जुमलों में PMRC को बयान करना चाहूँगी। PMRC sign of dignity, PMRC voice of voiceless, PMRC brave leadership। शुक्र आपका। मेरे अज़ीज़ों, आज जब इस वाइट संडे के मौके पर मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे अपनी बारगाहों में लेके आया। और ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मैं इस वक्त आपके सामने कुछ बातें वाइट पीपल संडे के हवाले से शेयर करना चाहूँगी। हम देखते हैं कि वाइट पीपल के हवाले से पाक कलाम में हमें इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि ये सारी रवायात जो हैं हम यूरोप और रोम से अडॉप्ट करते हैं और अब ये रवायात हम खुशी के साथ अपने चर्चेस में मनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात जो कही है तो इसके पस मंज़र की तरफ जाऊँ कि आप लोगों को पता चले कि पस मंज़र इसका क्या है वाइट पीपल संडे का। 1904 में हम देखते हैं कि मेथोडिस्ट चर्च में तहायत करने वालों का और अपने नजराने पेश करने वालों की मोहब्बत और अकीदत की अक्कासी करने के लिए ये इंतहाई आर्जाना तौर पे तरीका ये शुरू किया गया था, क्योंकि तोहफे तहायत जो हैं मोहब्बत बढ़ाते हैं और तमाम अक़वाम और तमाम मज़ाहिब में मुख्तलिफ रवायात में इसका जिक्र, तहायत का जिक्र हमें मिलता है। सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल के 18 बाब की 16 आयत में मौजूद है कि आदमी का नजराना इसके लिए जगह पैदा कर देता है और बड़े आदमियों के हुजूर इसकी रसाई कर देता है। दुनिया भर के मसीहों के लिए अपने मसीहा की पैदाइश का दिन बहुत अहमियत रखता है और हम पूरा साल इस दिन का बहुत बेचैनी के साथ इंतजार करते हैं। और इस मौके पर हम खुदावंद की दी हुई नेमतों में से कुछ नेमतें, कुछ हदिये, कुछ नजराने, कुछ तहायत खुदावंद के घर में लाते हैं, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम ये तहायत या नजरानी खुदावंद के घर में लाते हैं तो खुदावंद पर एहसान नहीं करते, बल्कि उसका एहसान मानते हैं कि उसने हमें इतना दिया, अपनी बरकत से नवाजा कि हम वो बरकत जैसे उन को सूरत में उसकी कलीसिया में बांटते हैं, उन नजरानों को तोहफों को खुदाम के घर में वो नजराने अगले जमा किए जाते हैं।
जैसे कि शुरू में जिक्र हुआ, मेथोडिस्ट चर्च में जब इसका आगाज हुआ तो सब तहाइफ को वाइट कलर के सफेद रैपर्स जो होते थे उनमें पैक कर दिया जाता था। ये तो वाइट गिफ्ट संडे का है, वो ये है कि जब लोग अपने तहाइफ खुदावंद के घर में लाते थे तो उन सब तमाम तहाइफ को एक जैसे वाइट कलर के गिफ्ट में पैक कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था? क्योंकि हम देखते हैं कि हर कलीसिया में हर जगह हर तरह के स्टैंडर्ड के लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो खुदावंद की नज़र में यकसा होते हैं। खुदावंद से उसी तरह प्यार करता है जैसे वो एक बहुत उमरा जैसे वो है तो उसको भी उतना ही प्यार करता है, और जो कोई लड़की है तो उसको भी खुदावंद उतना ही प्यार करता है। तो जब उसको तहाइफ को वाइट रैपर में रैप किया जाता तो उसका बेसिक मकसद क्या था कि किसी को भी कोई भी इंसान जो है एहसास महरूमी का शिकार ना हो, क्योंकि जब वो वाइट रैपर में पैक किए जाते थे तो उनकी मालियत का किसी को अंदाज़ा नहीं होता था। तो इस तरह सब पापुशी अपने नजराने खुदावंद के चर्च में लाते थे और अपना फर्ज, अपना एक मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार इस तरह करते थे। अमूमन देखा गया है कि वाइट गिफ्ट संडे को चर्च की दफातर खवातीन करने की जो हमारी खवातीन हैं इस वाइट गिफ्ट संडे की इबादत का एहतमाम करती हैं। तो अभी तहाइफ के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि ये तोहफे तहाइफ जो हैं पैसे या किसी और चीज़ से खरीदे जाएं, बल्कि हम देखते हैं कि बहुत से तहाइफ और ऐसे खूबसूरत होते हैं कि जिनकी कोई कीमत नहीं होती, वो कीमत से खरीदे नहीं जाते, और वो तोहफे होते हैं अपने बुजुर्गों की खिदमत करना, उनकी इज्जत करना, उनको प्यार करना। इसके हवाले से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खवातीन के हवाले से बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं खिदमत के हवाले से, जैसा कि पाकलाम में हमने पढ़ा कि लूका की इंजील 2 बाब इसकी 36 और 38 आयत में हम देखते हैं कि आशर के कबीले में हन्ना नामी उम्र रसीदा खातून थी और वो 84 बरस की थी, यानी वो इतनी उम्र रसीदा थी, फिर भी वो हैकल से जुदा ना थी और हर वक्त दुआओं और रोज़ों में खुदावंद की इबादत किया करती थी। तो ये हन्ना की तरफ से वो खूबसूरत और अजीम तोहफा था जो कि वो अपने खुदावंद के हज़ूर पेश करती थी। ये तोहफा उसने कीमत से नहीं खरीदा था, बल्कि अपनी ज़ात से, अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। उसने खुदावंद की हैकल की खिदमत में गुजार कर तो ये इजहार किया, तो इसके लिए हम शुक्र करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूह की पहले बात उसकी 16 और 17 आयत में जैसा कि पढ़ा गया कि रूह ने कहा तू हिम्मत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊंगी, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। रूह ने ये बातें किसके लिए कही थी? कोई बता सकते हैं किसके लिए कही थी? बिल्कुल, रूह ने ये बातें अपनी सास नयोमी के लिए की थी। और खुदावंद का शुक्र हो कि रूह की तरफ से ये एक खूबसूरत, अजीम और जिसका कोई मोल नहीं पता जो कि उसने अपनी सास को दिया। पाकला में देखते हैं कि हमें और बहुत सारी ऐसी
सारे लेती हैं, लेकिन हम इस पैगाम को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ और नहीं लिखेंगे। आपको सारी तफसील आप पढ़ते रहते हैं, हर साल आप सुनते हैं। आज का पैगाम जो मेरा मकसद था वो इसका पस मंज़र बताना था कि किस वक्त और किस हवाले से वाइट संडे का आगाज़ हुआ। तो खुदा का शुक्र करते हैं और मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, एक बात जो आजकल हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हमारे बच्चे अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की वो खिदमत, वो इज़्ज़त नहीं कर पाए जो कि उनको करनी चाहिए। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि खुदा अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की खिदमत कीजिए, उनकी कदर कीजिए और इस तरह के प्यारे और अजीज तोहफों से उनको नवाजिए, क्योंकि जब आप अपने बुजुर्गों की इस तरह खिदमत करेंगे तो इसका अजर, इसका सिला किससे आपको मिलेगा? खुदावन से आपको मिलेगा। खुदावन का शुक्र हो, इसके नाम की तकलीफ हो और खुदावन को जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पे मौजूद हैं और इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेकिन अपनी ज़िंदगियों के लिए शुक्र अदा करना बहुत हम पे लाजिम है। हम हमेशा दुआ करते हैं कि खुदा हमें अपने दिन गिनना सिखा। अभी रात को 8:30 पौने 9 के दरमियान में मेरी बड़ी बहन जो हमारे बैठी है, बिल्कुल अचानक उसकी डेथ हो गई है। मैं आधी रात तक वहाँ पे मौजूद थी। मैं वापस आई हूँ सुबह, फिर उनके घर नाश्ते का इंतजाम करके तो मैं मुझे उसमें यहाँ आई। तो हम पे लाजिम है कि हम आपका शुक्र करें कि आज की सुबह तक हम जिंदों की ज़मीन पे मौजूद हैं। शुक्रिया। एक छोटी सी दुआ के साथ मैं वापस जाऊँगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र तेरी तकदीर बजा करते हैं। खुदा इस ज़िंदगी के लिए, इस ज़िंदगी के तमाम तरह के तेरा शुक्र तेरी तकदीर इस वक्त खास तौर पे खुदा हम अपनी जान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज की इबादत के लिए, आज की दिन के लिए खुदा ने हमें इस जिंदों की ज़मीन पे रखा है। खुदा तेरा शुक्र हो। ऐ खुदा तेरे खुदा उसमें भी हमने दिन गिनना सिखा ताकि हम ये न भूलें कि हमें भी मौत के रास्ते से रोके खुदा तेरी बारगाह में आता है। खुदा तेरे खुदा हमेशा इंतजार करते रहने का बड़ा फजल अता कर। तेरी छोटी सी दुआ और मदद को सुन के माँ की हमें सुना के वसीला से सुन और बारिश दे। आमीन। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब झुकाएं और मुझे खुशी के लिए दुआ करें। मैं बात कलाम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए और ख़ास तौर पे जिंदा कलाम के लिए हमारे रात की रोशनियाँ करने के लिए इजरा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को मुबारक करते हैं। सीएसओ के नाम से आमीन। आज की ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो बातें आज हमने सीखी हैं और ख़ास तौर पर जो हमने सीखा है कि नौमी की ज़िंदगी के बारे में कि खुदा जब अपनी बेटियों को भी जो है वो उसी तरह इस्तेमाल करता है जिस तरह अपने बेटों को वो इस्तेमाल करता है। और वो जो जिम्मेदारियाँ एक बेटे के सुपुर्द हैं और एक बेटी के सुपुर्द जो की जाती हैं, तो मेरे ख्याल में वो सारी जिम्मेदारियाँ बेटी जो है वो बखूबी निभाती है। और आज भी आप तमाम बैठी हुई तमाम बेटियों से
اور ماؤں سے بھی درخواست ہے کہ ہم جب ایک باتوں کو سیکھتے ہیں خدا کے کلام کے حوالے سے سیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں بھی بیٹیوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، اور اس کلام کے حوالے سے بھی خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ اور آج ہمارے درمیان مسٹر کامران جج موجود ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ سامنے آئیں اور PNRC کے حوالے سے جو ہے وہ کمیونٹی رائٹس کے حوالے سے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ یہ سیکھنا آج کا ہمارا یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں خدا ہمارے ساتھ کس طرح کے معجزات کو کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر جب ہم ایک مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سے رائٹس ہیں ایک مسلم کمیونٹی کے، اور وہ سارے کے بارے میں یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ سب کو سلام۔ میرے قاطع احترام قاضی صاحب، میڈم رفت اور پیرش کے ممبران کو کلیسیا کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور آج کا خوبصورت دن ہے وائٹ سنڈے کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ شازیہ بھائی نے بتایا کہ میرا تعلق پاکستان منورٹی رائٹس کمیشن سے ہے، اور میں سندھ کا جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان منورٹی رائٹس کمیشن۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں آلگو راجہ کے حوالے سے ایک کیس چل رہا تھا، جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، اور جہاں تک کہ ہم سسٹم نہیں ہے، ہم ایک آواز ہے جو آواز اٹھائی ہے، جو انصاف کرنے والے اداروں کے عواموں تک پہنچی ہے۔ منورٹی رائٹس کمیشن ایک سسٹم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ کر دیتا ہے جو ادارے بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تنظیم جو ہے یہ خالی پاکستان میں نہیں، دنیا کے 26 ممالک میں کام کر رہی ہے، اور یہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے۔ اور ہر ایسا ایشو جس میں منارٹیز کے لوگ ملوث ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، پاکستان منارٹی رائٹس کمیشن اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ ناانصافیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ہماری بچیوں کے ساتھ کہ آج کل ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑتے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ آپ میں کیس ہوا جس میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی، اس سلسلے میں بھی ہم نے آواز اٹھائی۔ تو منارٹی رائٹس کمیشن کے بارے میں میرا بھائی بیٹھا اس نے بتایا، میڈم نے خود بتایا، لیکن میں یہاں پر ایک میسیج دینا چاہوں گا جو ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے بہترین درسگاہ کوئی نہیں ہوتی، اور ہم جس ایجوکیشن سینٹر میں جس اسکول میں جاتے ہیں، دوسری ہماری درسگاہ وہ ہے، تیسرا ہمارا چرچ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، جب ان چیزوں کے اوپر ہم فالو کرتے ہیں، یا اس کے لیے جو بھی ہمارے ماں باپ یا ہمارا چرچ یا ہمارا اسکول ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں اچھائی برائی کا ہمیں بخوبی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ماں کی گود دنیا کی بہترین درسگاہ ہے۔ اپنے گھر سے انسان سیکھتا ہے، اور دنیا میں باہر نکل کے وہ چیزیں جو ہمیں باہر نقصان پہنچاتی ہیں وہ ہمیں ہماری ماں بتاتی ہے، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو چاہے ہمارا بیٹا ہو۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میں آپ، کیونکہ باتیں تو ہماری آرگنائزیشن کے بارے میں بہت ساری ہو چکی ہیں، لیکن میں ایک میسیج دینا چاہوں گا آج کہ آپ یہاں میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، بچے بزرگ سب بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ اویئرنیس دیں، اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں۔ تعلیم سب سے بہترین چیز ہے۔ جب تک آپ کے بچے میں کسی بھی قسم کا نالج ہوگا نا، اس کو باہر دنیا میں کسی طرح کے بھی لوگ ملیں، لیکن وہ اس کو قائم نہیں کر سکتے جب آپ اپنے گھر سے سیکھ کر جائیں گے۔ تو اپنے پلیز اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اپنے مدد کے بارے میں سکھائیں۔ یہاں پاکستان میں بستے ہیں، ہم اقلیت ہیں، اتنے حقوق ہمارے نہیں ہیں جتنے ہمیں ملنے چاہیے۔ قائد اعظم کی 11ویں تقریر دیکھ لیں تو اس میں اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن کہاں ہیں ہمارے حقوق؟ نہیں دیے جاتے ہمیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں دیا نہیں جاتا، لیکن ہم اپنے لیے کچھ ایسے فیصلے خود کر سکتے ہیں
जो हमारी ज़ात के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। तो सो मेरी आप सबसे इस मुकद्दस जगह पे खड़े होकर मैं आपसे हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ कि हमने ज़माने में देखा, हम लोग रोज़ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बाद में हमें शर्मिंदगी होती है। जैसे इन्होंने बताया कि उस वाक़या में हमें खुद पीछे हटना पड़ा। क्यों? उसमें हमारे घर की दीवार कमज़ोर थी, हम खुद कमज़ोर थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने घर की दीवारों को इतना मजबूत करें कि किसी की हिम्मत ना हो कि हमारी दीवार को तोड़ सके। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इतनी अवेयरनेस दें कि ताकि उनको अपने मदद के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में पता चले, ताकि कल को ये वाक़यात ना हो। बहुत शुक्रिया। इससे पिछले कि हम आखिरी दुआ करें, हमारे चर्च के बेटे की पुकार है, गौर से सुनिएगा। मिस्टर बाबर मसीह व अरशद मसीह, तारीख पैदाइश 10/12/1988, हालत कवारी, बपतिस्मा याफ्ता, मुस्तहकमशुदा, मकान नंबर F140, फ्यूचर कॉलोनी लाडी, कराची के रहने वाले की शादी मिस मुकद्दस मोरस, दुख्तर मोरस मसीह, तारीख पैदाइश 27/1/2000, हालत कवारी, पंजाब, सियालकोट गोरिया विलेज की रहने वाली के साथ मोरबा 28/12/2020 को होना करार पाई है। अगर आप लोग को इनकी कोई दुकान में ऐसा माकूल सबब मालूम हो जिसकी वजह से इन दोनों का निकाह बांधना जायज़ ना हो, तो वो निकाह से पहले हमें आगाह करें, और अगर कोई ऐसा सबब नहीं तो इन दोनों खानदानों को अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। हमारे रिवायत के मुताबिक दुआ से पेशकर जब हमारे कोई मेहमान खुसूसी मेहमान आते हैं तो हम उनको फूलों से वेलकम करते हैं। तो आज मैं अपने पास बहन के लिए, बहन के लिए, भाई कामरान के लिए जो PMRC ऑर्गेनाइजेशन में अपने खिदमात सर अंजाम देते हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगी वो सामने है, और जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि वो आपके मेहमानों को जो है वो फूलों से वेलकम करें। सबसे ज्यादा आप सब लोग ये कहते हैं खुदा के बारे में मैंने आपको बताया कि 1904 में इसका आगाज किया गया मेथोडिस्ट चर्च में, और उसका मकसद क्या था? व्हाइट पेपर में रैप करके चीज को किसी के आगे पेश किया जाना, सबसे पहले खुदा के हुजूर। जो सफेद कलर है, व्हाइट कलर, ये पाकीज़गी को शो करता है। एडवेंट सीजन, क्रिसमस के आयाम हमारी जिंदगी में आमद के लिए तीसरा एतवार है आज जो हम खुदा के हुजूर इबादत कर रहे हैं। तो इस क्रिसमस के मौका पर मैं और आप हम सब बैठे हुए खुदा को क्या गिफ्ट कर सकते हैं? खुदा को इंसान की औकात नहीं है कि पैसे से खरीद के या कोई चीज पैसों की खुदा को दे सके। खुदा दिल को लेना चाहता है। आज मुझे और आपको इस व्हाइट गिफ्ट संडे के मौका पर, जैसे सफेद कलर में एक भी लाइन हो ना तो वो लाइन दूर से नजर आ जाती है, तो मुझे और आपको अपने दिलों को पाकीज़गी की तरफ लेके जाना है। इस व्हाइट कलर की गिफ्ट की तरह जो है, जैसे वो रेड कलर की गिफ्ट देते हैं, आज मैं और आप अपने आप को अपने खुदा के हुजूर पाकीज़गी के साथ पेश करें। मैं और आप अपनी जिंदगी से गुनाहों को, गलतियों को धोएं। इस आमद के आराम से क्रिसमस से पहले अपने दिलों को साफ करें। जैसे सास बहू की स्टोरी आपके सामने पहले मैंने रूथ की बयान की, और आज बहन ने उसमें से हवाला पड़ा कि रूथ अपनी बहू के साथ और सास बहू का एक रिश्ता बड़ा खूबसूरत मिसाल सबको क्या गया। उसने कहा जान तू जाएगी
मैं वहां जाऊंगी। उसकी बहू ने, रूथ ने अपनी सास से कहा नौमी को, आज क्रिसमस से पहले मुझे और आपको सास और बहुओं की लड़ाई को अपने दिलों से दूर करें। बहू सास से कह सके जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, ये नहीं कि वो कहते जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। काश ऐसी मोहब्बत सास और बहू के रिश्ते में कायम हो तो आगे खानदान लड़ाई की तरफ बढ़ नहीं सकते। मेरी दुआ है। और आज हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, बुजुर्ग सास जो हैं, खुदा में फजल बख्शे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। और अब वो कहते हैं कि जहाँ तू लेके रहूंगी मैं और आप भी अपने इस घर को, असल घर होता है जहाँ बहू ब्याह कर आ जाती है, उस घर को अपना घर समझे। हम ये ना कहें कि हमारी सास मरे, हम उससे पहले कि जहाँ तू लेके जहाँ तू मरे तो मारेंगे। अपनी सास से प्यार मोहब्बत करें, सास अपनी बहू से, अपनी बेटियों से बढ़ के प्यार मोहब्बत करे तो आपको बेटी बन के दिखाएगी। मेरी दुआ है कि हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और इस वाइट गिफ्ट संडे के मौका पर क्रिसमस से पहले खुदा के हुजूर पाकीज़ा तोहफा लेके आए। जैसे वो बेवा जो लूका के चिन्ह के दूसरे बात से बराबर की गई, वो खुदा के घर से जुदा नहीं हुई, बावजूद के बेवा थी। मुझे और आपको भी खुदा के घर से जुदा नहीं होना। खुदा ने हमें चीज़ दी है, बेवा दूसरों पर डिपेंड करती है। इस क्रिसमस के मौका पर हम बेवाओं, यतीमों, गरीबों को देते हैं, लेकिन उसकी खिदमत का सिलसिला देखिए वो हैकर के साथ कायम थी 84 बरस से, उससे भी आगे जिंदगी। आज मैं और आप भी अपना गिफ्ट खुदा को दें कि उसके घर के साथ कायम रहे, उसके घर के साथ रफाकत में रहे, उसके घर के साथ व्यवस्थ रहे। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और खुदा के हुजूर बढ़ते चले जाएं। स्वागत की टाइमिंग के हवाले से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे क्रिसमस की इबादत अभी नोटिस बोर्ड हो सकता है हम लोग लगा दें। जो रात की इबादत होगी वो 11 बजे होगी 24 तारीख की, और सुबह 25 दिसंबर की इबादत जो हमारे चर्च का 11 बजे का वक्त है। और इस तौर पे 31 तारीख जो लास्ट इस साल के प्रेयर होगी वो भी रात 11 बजे और मॉर्निंग सुबह 11 बजे। आप लोग इन दुआओं को, इन इबादत को याद रखें और वक्त पर खानदान के साथ पहुँचने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोग का, खासतौर पे हमारे मेहमान जो है इस शाजिया के लिए, अपनी चर्च कमेटी के लिए और सबसे बढ़ के अपनी पूरी कलीसिया के लिए जो वक्तन फवक्तन जब जब हमें अपनी कलीसिया की जरूरत होती है तो हमारी मदद और हमारी करते हैं। हम सब इबादत के इख्तिताम पर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हुए आज की सारी बरकत के लिए कलाम की जो शेयरिंग रहने की, आज खास तौर पे जो सास है, जो बहू है, वो अपनी जिंदगियों से लड़ाई झगड़ों को दूर करें। इस क्रिसमस के मौका पर हम तमाम अपनी बहुओं के लिए और जो हमारी बहुओं की सास है उसके लिए भी दुआ मांगेंगे कि खुदा ऐसा ईमान बख्शे जैसा रूथ की जिंदगी में था कि उसने उसके लोगों को कबूल किया। आज हमारे घर की बेटियां जो ब्याह कराती हैं वो हमारे खानदान को कबूल कर सके। खासतौर पे आने वाले क्रिसमस की इबादत के लिए खुदा के हुजूर से दुआ मांगेंगे। और जिसने दुआ की दरख्वास्त थी बेटे शहरी के लिए, खासतौर पे भाई साहिब की बेटी के लिए, खुदा ने जो उसे बेटी की नेमत से नवाजा, खुदा उस बेटी को शिफा तंदुरुस्ती बख्शे। भाई सैमुअल के लिए और जिसने दुआ की दरख्वास्त दी उन सबों के लिए दुआ मांगेंगे। आज खासतौर पे PMC PMRC इदारे के लिए और अपने भाइयों के जो आज खुदा के हुजूर आए हैं, जो इस आवाज़ को, जो बेआवाज़ों की आवाज़ होती है उसको बुलंद करते हैं, खुदा उस आवाज़ में अपने लोग की बड़ी मदद और रहनुमाई करे ताकि इदारा यूं ही वफादारी से हकीकतों के लिए, मसीहों के लिए अपनी खिदमत को सरंजाम दे सके। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हुए दुआ मांगे। कदूस मेहमान आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज एक बार फिर से इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में ये सुहानी घड़ियां बख्श दी ताकि आज के रोज तेरे घर में जमा होकर तेरी इबादत हम लोग समय कर सके। तू हमारा खुदा, हम तेरे लोग और तेरी चरगाह की भेड़ हैं। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आसमानी बाप आज हम अपने दिलों का हाल तेरे आगे पेश करते हैं और आज तेरे हुजूर में जो तमाम बेटी जाने जमा है, मैं तेरा खादिम होते हुए एक एक बेटी जान के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआएं खैर चाहता हूँ। तेरी सलामती तेरे लोगों की जिंदगी में सदा
कायम और दायम रहे। हमारे बाप आज खास तौर पे इस वाइट गिफ्ट संडे के लिए जो कलीसियाई तौर पर हम तेरे हुजूर में मना रहे हैं, हमारे बाप जिस तौर पे ये सफेद कलर, ये व्हाइट कलर पाकीज़गी को बयान करता है, आज हमें फजल बख्श कि मैं और मेरी पूरी कलीसिया और बैठी हुई एक जान आज जिस तौर पे ये व्हाइट गिफ्ट संडे मनाया जा रहा है, हम अपने दिलों को पाकीज़गी के साथ तेरे हुजूर में पेश करते हैं। हम जिस तौर पे तहाई पे एक दूसरे को मोहब्बत के साथ पेश करते हैं, आज हम अपना दिल, अपने खानदान तेरे हुजूर पेश करते हैं। तो हमारी मोहब्बत को बढ़ा, हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहते हुए इस सफेद कलर के मालिक बने, अपनी जिंदगियों से सारे गुनाहों को, गलतियों को, कोताहियों को दूर करें जो एक दूसरे के लिए ठोकर का सबब होती हैं। हमारे बाप आज हम अपने दिलों को तोहफे की मानिक तेरे हुजूर पेश करते हैं। आज सर पे तेरे कलाम में से जो तलावतें की गई, बिलखुसूस तेरे खुदाम रूह की किरदार को आज हम अपने दिलों में रहते हैं। हमारी बेटियां जो ब्याह चुकी हैं, जो ब्याहने को हैं, जब तू उनको उनके घर बख्शे या बख्श दिए हैं, वो लायक तौर पर तेरे खुदाम अपनी सास के साथ फर्माबरदारी से पेश आती है। जिस तौर पे रूत ने उन लोगों को कबूल किया, उसने खुदा को कबूल किया, ये हमारी बेटियां भी तेरे खुदाम अपने उस खानदान को कबूल कर सके जो तूने इन्हें बख्शा है, जो तूने देने को है, ताकि ये भी तेरे खुदाम अच्छे तौर पे अपने किरदार में तेरे खुदाम पाक दामनी के साथ उस किरदार में शामिल हो सके। और बाप उस बेवा की माने जो तेरे हुजूर में हमेशा बेबस्त रही, 84 बरस से, बल्कि इससे कई ज्यादा बढ़ के वो तेरी हैकल से तेरे खुदाम की बात करती हुई, आज मैं और मेरी पूरी कलीसिया हम लायक तौर पर तेरे हुजूर तुझे खिदमत पेश करने वाले हैं, क्योंकि तू हमारा खुदा है और हम तुझे छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बाप आज जो सारी अरेंजमेंट की गई तमाम उन बेटियों के लिए, बेटों के लिए जिन्होंने तमाम तेरे खुदा ने इस प्रोग्राम को सजाया, उन सबों के लिए तेरे खाते में दिल से बरकत की दुआ करते हो। उस शाजिया के लिए और पूरी चर्च कमेटी के लिए और सबसे बढ़ के अपनी पूरी चर्च कलीसिया के लिए, और जो बेटे बेटियां तेरे को गाकर बजाकर तेरे खुदा सहायक करते हैं, जो तलावत करते हैं, दीगर जिस तौर पर तेरे पास से अंजाम देते हैं, तेरा खाते में एक एक अपने बहन भाई के लिए, बेटे बेटियों के लिए तेरे दिल से बरकत की दुआ करते हो। तेरी सलामती सदा तेरे बच्चों की जमीन है। अपनी चर्च कमेटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, यूथ के बच्चों के लिए, रफाक के खवातीन के लिए और दीगर जो बहन भाई के समाज से अंजाम देते हैं, सबको की दुआ करते हैं। क्रिसमस की सारी इबादत के लिए और न्यू ईयर की सारी इबादत को भी से तेरे हाथों में देते हैं। कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया हमारी जिंदगी में दरपेश ना हो, बल्कि हमारे बाप मसीह कौम आज़ादी के साथ, खुशहाली के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में रहते हुए अच्छे तौर पर तेरे बेटे यीशु की विलादत के दिन को मनाते हुए शुक्र करता है। आज खास तौर पर हमारे बाप अपने बहन रिपल के लिए, भाई कामरान के लिए और अपने भाइयों के जो कैमरा ऑपरेट करते हैं, इस पूरी टीम के लिए तेरे जोर से बरकत की दुआ करते हैं। जिस तौर पर तुझे अपने लोगों के आने में हिफाजत की, जब बहुत सी लौटते हैं कि तेरे खुदा लौटने में कहा गया होगा, खुसूस PMRC इदारे के लिए जो पहले खुदा बे आवाज़ को ये आवाज़ बनाते हैं, इस आवाज़ के साथ तो खुद मिलकर तेरे खुदा के साथ शामिल होगा, ताकि वो काम जो जुल्म, जो तशद्दुद, जो ऐसे काम होते हैं, वो काम इस दुनिया से दूर हों और ये इदारा हमेशा तेरी राहबरी में रहता हुआ और ज़्यादा तेरे लोगों के लिए तेरे खुदा खिदमत सर अंजाम देने वाला। एक बार फिर से बहन के लिए, भाई कामरान के लिए और अपने भाइयों के लिए एक बार चाहते हैं बिलखुसूस बहन के जो अजीज़ करम खुदा की दुनिया से कूच कर गए, उनके लिए भी तेरे जोर से तसल्ली की, तशफ़ी की दुआ चाहते हैं। खास तौर पर बेटे शहरी के लिए अपने बेटे के सारे जीवन को यीशु के नाम से दूर कर, ताकि तेरा बेटा शिफा तंदुरुस्ती पाए और तुझ पाक खुदा को शुक्र अदा करे। बेटे राहिल के लिए पहले खुदा अपने बेटे को शिफा तंदुरुस्ती बख्श, ताकि वो शिफा याबी हासिल करे और तुझ पाक खुदा को शुक्र अदा करे। भाई साहिब की बेटी के लिए जिनको तूने पहले खुदा औलाद की नेमत से नवाजा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू कादिर मुतलिक है, तू हर एक शय देने पे कुदरत रखता है। तूने अपने लोगों को पहले खुदा औलाद की नेमत से नवाजा, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। अब आसमानी बाप उस नन्ही जान को, छोटी बेटी को तेरे हाथों में देते हैं। आसमानी बाप, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस उस नन्ही बेटी की हिफाजत करे और वो मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो और पहले खुदा उसका पूरा खानदान तेरा शुक्र अदा करे। इस सदिया नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे ही दिए में से तुझे दिया, इसे अपने हुजूर में कबूल फरमा। इसके बस आसमान के दरवाजे खोल के कसम की नेमतें बरकतें तो अपने लोगों को बख्श। बेटी सुनैया के लिए भी दुआ मांगते हैं, बेटी को शिफा दे, जितनी शिफा तूने दी है तो शुक्र अदा कर। बेटे की जान के लिए, हाजिर जमात के लिए कसरत की बरकत की दुआ करते हैं।
हमारे बाप जिस तौर पे अपनी कलीसिया को भला चंगा व हिफाजत पाया, शुक्र अदा करते जब दोबारा एक दूसरे को मिले इसी तौर पे मेरे गुलाम से त्यागी के साथ मिले और दूध पाक को रखा। आज की इबादत का इज्जत और जलाल दूध पाक को जागो देते हुए अपना आप, अपनी पूरी कलीसिया, अपने खानदान, खासतौर पर अपने अजीजों को जो मेहमान हैं सबों को योग्य तरीके से पास कर जा देते, एक एक जानवर की हिफाजत और मुआवजत देते हुए सभी कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह के बाबर का नाम से आमीन। हम सब खुदा की सिखाई गई दुआ में बुलंद आवाज से शरीक होंगे। हमारा बाप तेरी बात सुनी है, तेरी वजह से आसमान पर तू होती है, हमारे दोस्त को याद रखे और जिसको हमें कोई तरफ काम करते हैं तो हमारे घर को माफ कर, मैं आजमाइश करते रहते बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा रखते रहे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत तब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, तमाम मुकद्दसीन के साथ और इस पूरी दुनिया भर में बिलखुसूस जो इदारे थे खिदमत से अंजाम देते हैं, खास तौर पे पैरसलाउन, PMRC और तमाम उन इदारों के साथ जो पूरा घर को अपने दरमियान रखते हैं अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वाइट गिफ्ट संडे है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं BTL TV के जिन्होंने आके आज हमारे साथ अपना शेयर किया सारा, और आप अपना फीडबैक दें कि आप क्या समझते हैं कि आज का इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसा लगा देखकर, और आप क्या अपना फीडबैक देना चाहती हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच PMRC का जो आए और आज इस खूबसूरत और बाबरकत इबादत के लिए जिसमें हम सब शरीक थे, और ख़ास तौर पर थैंक यू सो मच मिस रिफ़त का और भाई कामरान का। हम ये बहुत फ्रूटेबल ब्लेसिंग्स वाली इबादत थी, हमें बहुत अच्छा लगा इस इबादत से, और ख़ास तौर पर इस वाइट गिफ्ट संडे के लिए। और मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं PMRC की मेंबर हूँ, और इस बाबरकत इबादत के लिए और आप सबका थैंक यू, और एक बार फिर BTL का थैंक यू सो मच। ये प्रिस्का थी हमारी टीम लीडर्स, हमारे चर्च की मेंबर भी हैं, और इन्होंने अपना फीडबैक दिया। इसी तरीके से हम और फीडबैक लेंगे। बाजी वीनस से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए, वो अपना फीडबैक दें कि आपको आज के इस प्रोग्राम के हवाले से वाइट गिफ्ट संडे के बारे में कुछ आप बोलना चाहती हैं। मसीह खुदावंद में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद के अजीम, जबकि खुदावंद हमसे प्यार करता है, और वाइट दिन जो वाइट डे है आज जो हम लोग मना रहे हैं, खुदावंद इस वाइट डे के हवाले से, जबकि खुदावंद हमारे साथ हमें अपने तोहफ़े या अपनी वो चीज़ें फराहम करता है जो खुदावंद अपने जलाल के वसीला से और अपने फजल के वसीला से खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में देता है। तो हमें भी चाहिए कि गिफ्ट के तौर पर जब हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं तो खुदावंद को वो गिफ्ट देते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़िंदगी अता करता है। इसीलिए हम भाई और बहन के शुक्रगुजार हैं कि वो आज हमारे चर्च में आए, और उनकी खिदमत के लिए कि जो वो खिदमत शाना बशाना कर रहे हैं, और इसी खिदमत के वसीला से खुदावंद उन्हें बहुत बरकत दे। BMC के हम शुक्रगुजार हैं कि वो आज हमारे चर्च में आए।